Hello students, good morning. Jai Swami Narayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your maths teacher. Now we'll start lesson number 5, factors and multiplies. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 5, factors and multiplies. But before starting our today's topic, first we will see what we had learned in this lesson. So all of you know very well what we had learned. So first we had done the multiplies. Then after we had done the property of multiplies. Then after we had done the odd and even number. So which number is known as odd number? The number which has the multiple of the 2. The number which has the completely divisible by 2. This number is known as the even number. And this number not divided by 2 and this number is not multiple of 2. This number is known as the odd number. Then after we had done the factors. So factors means a number divide the number without leaving a remainder. So when we have divided any number, after the dividing number we will get remainder 0, means this is the factor of this number. Then after we had done the factor tree, then after we had done prime number and composite number. So all of you know very well which is the number is known as the prime number. The number which have only two factor, one and the itself number. This number is known as the prime number. And the composite number, the number which have a more than a two factors. So this number is known as the composite number. One example of the prime number is the 2. So 2 has only two factors, one and the itself number, means 2 is the prime number. And example of the composite number 4. 4 have a more than a 2 factors, means 4 have a 1, 2, 4, 3 factors, means 4 has a composite number. Then after we had done the property of the factors, then we had done twins prime number. So which number is known as the twins prime number? The number which have a deferred 2. The number 2, the 2 prime number which have a deferred 2, this number is known as the twins prime number. Then after we had done the how to take out common factor and SCF. SCF means highest common factor. SCF means highest common factor. So which number is the highest? Which number is highest after the take out common factor? So this number is known as the SCF. Then after we had done the co-prime number. So all of you know very well which number is known as the co-prime number. The number which have only one is the common factor. For example, 15 and 16. After the take out the factors of 15 and 60. Now which number is the common? 1 is the common. So this number is known as the co-prime number. Then after we had done the LCM. So all of you know very well what is the full form of LCM, lowest common multipliers. So when we want to take out LCM of the number, so that time we are writing the multiplies number. So 3 multiplies is 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. These are the multiple of the 3. Then after the takeout multiplies, then after we will see the which are the common multiplies. After the takeout common multiplies, then after we will see the which is the smallest number. In the SCF we are looking the highest number, and in the LCM we are looking the small number. So like that we are take out in the LCM. Then after we had done in the last class prime number. So prime number means we are take out the factors of number. We are take out the factors of number up to prime. And all of you know very well what is the prime number? The number which have only two factors, one and the itself number. This number is known as the prime number. For example of the 48. So 48, now 48, two factors here. 3 into 16 is the 48. Now 3 is the prime number, but 16 is not a prime number. So we will now take out the factors of 60. So 2 multiplied by 6, 2 multiplied by 8, 16. 2 multiplied by 8, 16. Now that
2 is the prime number. Now 8 is the composite number. So now 8 is the composite number. So now 2 into 4 is the 8. 2 into 4 is the 8. Now that 4 also composite number and 4 also composite number and 2 is the prime number. So now 4 2 into 2 4 2 into 2 4. So now that all number is the prime number. That all is the prime number. हम नंबर को निकालेंगे जब तक वो कौन से नंबर में नहीं आता है, प्राइम नंबर में. तो 3 इंटू 16 करेंगे तो कितना होता है, 48 होता है. तो 3 इंटू 16 किया तो 48 हो गया. तो 3 कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है. तो उसको हम 3 इज द प्राइम नंबर को, तो 3 को हम एज इट इज़ ही रख देंगे. देन 16 ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है. तो हम 16 के अभी फैक्टर्स निकालेंगे. 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 8 16 होता है. नाउ दिस 2 इज द प्राइम नंबर. तो 8 कंपोजिट नंबर है, तो 8 के फैक्टर्स निकालेंगे. 2 इंटू 4, अभी 2 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है. 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होता है. तो इस तरह हमने क्या लिखा है, प्राइम नंबर है. तो जब तक प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, हम नंबर्स को निकालेंगे जब तक वो कौन से नंबर में नहीं आता है, प्राइम नंबर में नहीं आता है. अभी 48 के फैक्टर्स क्या है, जो प्राइम नंबर है वो ही लिखेंगे. जो सर्कल में जो हमने प्राइम नंबर है वो ही लिखेंगे. वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर क्या है, 3 2 2 2. दिस इज द प्राइम नंबर. Then after we had done the in last class prime factorization by division method. तो सेम जो हमने यहाँ पे ट्री वाली मेथड ट्री यूज़ की थी, उसके जगह पे यहाँ पे क्या है, डिवीजन मेथड है. तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे जो भी नंबर हम डिवाइड करेंगे वो प्राइम नंबर ही लिखेंगे. तो प्राइम नंबर कौन से होते, 2 2 3 5 7, देन उसके बाद 11. तो यही नंबर के साथ हम डिवाइड करेंगे, यही नंबर के साथ डिवाइड करेंगे. क्यों वही नंबर लेंगे, क्योंकि हमें कौन से फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. कौन सा नंबर निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, इसलिए. सो फॉर दैट एवरीवन नीड टू लर्न एंड एवरीवन, सबको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं और कौन से नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं. तो वो इजी हो जाएगा. तो हम सबसे पहले जब डिवीजन मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो तब हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है. तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं. अगर वो नंबर 2 के साथ डिवाइड होता है तो हम सबसे पहले 2 लिखेंगे. अगर 2 से नहीं होता है तो उसके बाद सेकंड प्राइम नंबर लेंगे 3. देन उसके बाद 3 से भी नहीं डिवाइड होगा तो नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर लेंगे 5. अगर 5 के साथ भी नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर हम 7 लेंगे. तो यहाँ पे जब हम डिवीजन करेंगे तब वहाँ पे सिर्फ हम प्राइम नंबर के साथ ही डिवीजन करेंगे. सो दीज आर वी हैड डन इन आवर लास्ट क्लास. और हम नंबर को डिवाइड करते जाएंगे जब तक वो कौन से नंबर में नहीं आएगा, प्राइम नंबर में नहीं आएगा, तब तक हम डिवीजन करेंगे. सो एक्सरसाइज 5.8 these are the we had done in the our last class. Now we will start our today's topic, SCF by a prime factorization. So all of you look at here. हमने पहले यहाँ पे SCF निकाला था, तब यहाँ पे प्राइम ये वर्ड नहीं आया है, सिर्फ क्या है, SCF ही निकाला. अगर हमें क्वेश्चन आता है कि फाइंड द SCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर ऐसे लिखा होता है कि हमें SCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसके लिए स्टेप होती है. तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टर उसके निकालेंगे. और उसके बाद जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2 नंबर है यहाँ पे 6 and 8, 6 और 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाले. और जो भी कॉमन नंबर्स होंगे यहाँ पे 2 and 3 बोथ आर द कॉमन, जो कॉमन नंबर होंगे उनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. वो हमारा हो जाएगा SCF. वो हमारा क्या होता है, SCF. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. Find the SCF of 6 and 18. So step number 1, use the division method to find the prime factorization of 6 and 18.
हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके डिवीजन निकालेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 के फैक्टर्स निकाले हैं तो 2 और 3 आ गया है। एंड 18 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 9 मिलता है, और यहाँ पे 9 हो गया। अभी 9 2 के साथ डिवाइड हो गया क्या, नहीं, 3 3 सा 9। तो हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि जो नंबर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, और जो भी क्वेश्चन होगा वो हम नीचे लिखते हैं। अभी 9 को 3 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन 18 की क्या है, 2 3 3। फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 18 is 2 3 3. Now we will see which are the number is common here. यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 and 3 कॉमन है। प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर 2 into 3 equal to 6 means our SCF of 6 and 18 is 6, SCF of 6 and 18 is the 6। यहाँ पे SCF कितना हो गया है, 6 हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जो भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनके हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आंसर है वो हमारा SCF हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल, नाउ 2, फाइंड द SCF ऑफ द 18 एंड 24 और 18 के हम क्या निकालेंगे, SCF। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF निकालेंगे। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 3 3। तो इसको भी कौन से मेथड से निकाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे देखो ऑलरेडी 18 के फैक्टर्स निकाले हुए, 2 2 3 3 ये 18 के फैक्टर्स है, और 24 के फैक्टर्स कहते हैं 2 2 2 3 ये 24 के फैक्टर्स है। ये भी SCF मेथड से, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से निकाले हैं। यहाँ पे हम करके देखेंगे 24। ओके, तो ये जो ये होता है डिवीजन मेथड, वो रफ में करके हमें डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टर से लिखना पड़ता है। सो 24 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 12 आता है। तो यहाँ पे डिवीजन वाला नंबर लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। अभी 12 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना होता है, 6 होता है। अभी 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना हो गया है, 3 हो गया है। अभी 3 हमारा कौन सा नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 24 के फैक्टर्स देखो क्या आ गए, 2 2 2 3 2 2 2 3 ये 24 के फैक्टर्स आ गए। और फिर उसके बाद हम दोनों में कॉमन क्या है वो देखेंगे, और जो भी कॉमन है उसका मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, SCF हमारा उसका क्या हो जाएगा, SCF दोनों का कॉमन नंबर का मल्टीप्लिकेशन। Now we will start now exercise 5.9, find the SCF by prime factorization method. So now first number is 20 and 48। तो सबसे पहले हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 के प्राइम फैक्टर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नहीं निकालेंगे, हम रफ में 20 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 20 अगर हम 2 के साथ डिवाइड अगर हम 20 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 20 इन द 2 टेबल्स इन द प्लेस ऑफ 10, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 10 आ गया। ठीक है, अभी 10 2 के टेबल में कौन से वाले प्लेस में आता है, 5 वाले प्लेस पे। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे जो नंबर डिवाइड किया है, और क्वेश्चन हमने नीचे लिख दिया है 5। तो 5 इज द प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 20 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 2 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 20 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 2 एंड 5। दिस इज द फैक्टर ऑफ द 20। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। अभी यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ
48। 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम 48 लिख देंगे और यहाँ पे 2 को हम 48 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको करके दिखाती हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 48। सो 2 2 ज़ा 4, 0 एंड 8, 2 4 ज़ा 8। तो 2 को अगर हम 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना मिल रहा है, 24। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 24 लिख देंगे। अगर हम 24 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं, देखो 24 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 0 ब्रिंग डाउन 4, 4 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे कितना मिल गया है, 12 मिल गया है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे जो नंबर हमने डिवाइड किया है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 12। अभी 12 2 के टेबल में आता है, यस 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 6। यहाँ पे 2 लिख दिया है और यहाँ पे 6 लिख दिया है, क्योंकि 12 2 के टेबल में कौन से प्लेस पे आता है, 6 वाले प्लेस पे आता है। देन 2 के टेबल में 6 आता है, यस 2 3 ज़ा 6। 2 के टेबल में 6 कौन से प्लेस पे आता है, 3 वाले प्लेस में। सो 2 3 ज़ा 6। नाउ 48 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स एंड 3 आल्सो प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम 48 के फैक्टर्स लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 multiply by 2 multiply by 3. So these are the factors of 48. These are the factors of 48. अभी हम दोनों में क्या कॉमन है वो देख लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 2 कॉमन है और ये 2 2 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन है क्या इसमें, ये 2 ही सिर्फ यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे common factors of 20 and 48। दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 एंड 2। अदरवाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2 कॉमा 2। ये दोनों कॉमन है, 2 कॉमा 2 ये दो नंबर यहाँ पे कॉमन है। अभी हमें HCF निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे, HCF ऑफ 20 एंड 48। HCF कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 4 होता है। तो इसका HCF क्या हो गया है, 4 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे 2 2 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 2 2 कॉमन है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है यहाँ पे। तो हमने 2 2 2 टाइम्स लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2 2 ही कॉमन है। और HCF निकालते समय जो भी कॉमन नंबर होगा उसका हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, जो भी कॉमन नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो HCF कितना हो गया है, यहाँ पे 4 हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 24 एंड 36। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स of 24, and here we will write now prime factors of 36. Okay, so 24 factors. So now look at here in the textbook already have a 24 factors, और मैंने आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखाया था 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 2 एंड 3। 24 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम 24 के फैक्टर्स लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ 24। अभी हम 36 के फैक्टर्स निकालेंगे।
तो यहाँ पे हम 36 लिख देंगे। अगर हम 2 को 36 के साथ डिवाइड करेंगे, सो 2 1s are 2, 1 and 16 and 2 8s are 16। तो क्वेश्चन कितना आ गया है 16 और 2 के साथ डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 18। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है और यहाँ पे 18 लिख दिया है। नाउ 18 इज प्रेजेंट इन द 2 टेबल्स। यस, 18 इज प्रेजेंट इन द 2 टेबल्स इन द प्लेस ऑफ 9। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। नाउ 9 is present in the 2 tables? No, 9 is present in the 3 tables। 3 के टेबल में आता है और 3 also प्राइम नंबर। तो 3 के टेबल में 3 कौन से प्लेस पे आता है? 3 वाले प्लेस पे। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। 9 को हमने 3 के साथ डिवाइड किया है, तो क्वेश्चन कितना मिल गया है? 9 मिल गया है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे 36 के क्या हो गए? 2 2 3 3, 2 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। तो यहाँ पे 36 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3। दिस इज द फैक्टर ऑफ 36। अभी हम कॉमन निकालेंगे, तो इसमें ये 2 कॉमन है, ठीक है। और जो भी कॉमन होता है उसको 1 टाइम ही लिखते हैं, ठीक है। ये कॉमन है, देन उसके बाद ये कॉमन है। 2 कॉमन है यहाँ पे नहीं है, तो ये 3 और ये 3 कॉमन है, ठीक है। ये 3 और ये 3 कॉमन है और ये 2 एंड 2 कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36। कॉमन क्या है? 2 2 and 3, these are the common। 2 2 and 3, these are the common। अभी HCF निकालना है। HCF of 24 and 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या है कॉमन? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 and 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3s are 12, 4 3s are 12। तो यहाँ पे हमारा HCF कितना आ गया है? 12 आ गया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। तो हमारा HCF यहाँ पे क्या आ गया है? 12 आ गया है। देन एग्जाम्पल नंबर 3, 36 एंड 60। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। तो हमने 36 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाले थे। 36 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ 36। अभी हम 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। ओके, नाउ 60 को 2 के साथ डिवाइड करके देखेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 60, सो 2 3s are 6 0 एंड व्हेन यू आर डिवाइडेड बाय 0 यू विल गेट 0। तो 2 को हमने 60 के साथ डिवाइड किया है, तो क्वेश्चन कितना मिल गया है? 30। अगर 30 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 2 1s are 2 0 1 2 5s are 10। तो क्वेश्चन कितना आ गया है? 15 और यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड किया है, ठीक है। अभी जो 15 है वो 2 के साथ डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है। कैसे पता चलेगा कि वो नंबर अगर
मैंने ये आपको बताया है ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या होता है, जो नंबर 2 के साथ डिवाइड होता है उसको बोला जाता है ऑड नंबर, सॉरी, जो नंबर 2 के साथ डिवाइड होता है उसको बोला जाता है इवन नंबर। द नंबर विच हैज़ अ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, दिस नंबर इज नोन एज द इवन नंबर। सो हाउ टू फाइंड this number is divided by 2 or not? So for that we will need the last digit 0 2 4 6 8। अगर लास्ट में अगर इसमें से कोई भी डिजिट आता है तो वो 2 का डिवीजन होता है। तो 60 में 0 आ रहा है मतलब वो डिविजिबल होगा 2 के साथ। अभी 15 में 0 2 4 6 इसमें से है क्या, नहीं है। 50 डिवाइड होगा क्या, 2 के साथ नहीं होता है। देन 3 के साथ, यस, 3 के टेबल में 5 वाले प्लेस पे 15 आता है। 3 5s are 15। Now 5 also prime number and 3 also prime number. So now factors of the 60, 2 2 3 and 5. 2 multiply by 2 4, 4 multiply by 3 12 and 12 5s are 60. So these are the factors of prime factors of 60। तो यहाँ पे हम 60 के प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। 2 multiply by 2 multiply by 3 and multiply by 5। So these are the prime factorization of the 60। अभी हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो इसमें ये 2 कॉमन है, देन ये 2 कॉमन है एंड ये 3 कॉमन है। दिस आर द कॉमन, नो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स of 36 and 60। दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 and 3 कॉमन है। 2 2 and 3 दिस आर द कॉमन। और जो भी कॉमन है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एच सी एफ ऑफ 36 and 60, 2 multiply by 2 multiply by 3, 2 multiply by 2 4 and 4 multiply by 3 12। So HCF is the 12। 36 and 60 HCF is the 12। HCF is the 12। So this is the example number 3। Now example number 4 I am solving here। So example number 4 is the 54 and 72। So here first I am writing prime factors of 24 and prime factors of 72। तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 54 एंड 72 के। तो अभी देखो 54 एंड 72 दोनों में यहाँ का लास्ट डिजिट 4 है और यहाँ का लास्ट डिजिट 2 है। तो मैंने अभी बताया था अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 इसमें से आता है तो वो 2 का डिवीजन होता है। तो 54 और 72 दोनों भी 2 का डिवीजन होगा। तो सबसे पहले हम 54 लिख देंगे और यहाँ पे हम 2 के साथ उसको डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 and 51। So 2 2s are 4, 1 4, 2 7s are 14। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ गया है 27 2 के साथ डिवाइड करने के बाद। 54 को 2 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया है 27। नाउ लास्ट 27 में लास्ट डिजिट 7 है, ये 2 के साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं। अभी 3 के टेबल में 27 आता है, यस, 3 9s are 27। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और यहाँ पे 9 लिख देंगे। अभी ये 9 2 के साथ डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। 3 3s are 9। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 3s are 9। सो नाउ 54 फैक्टर इज 2 3 3 3। 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या गए 2 3 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 3 3 and 3। These are the factors of the 54। Now 72 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो
2 को हम 2 के साथ डिवाइड करके देखेंगे. 2 डिवाइडेड बाय 72. 2 3 × 6 एंड 2 2 6 × 12. तो क्या आ गया है क्वेश्चन 36 2 के साथ डिवाइड करने के बाद. अभी 36 को यहाँ पे देखो हमने 36 के फैक्टर्स निकाले हैं. 36 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आता है 18. देन 18 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आता है 9 आता है. 9 2 के साथ डिवाइड होता है क्या? नहीं. तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 3 3 × 9. 9 को हमने 3 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 आ गया. अभी यहाँ पे 72 के फैक्टर्स क्या है 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3. दिस इज द फैक्टर ऑफ द 72. तो 72 के फैक्टर्स लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द 72. अभी दोनों में कॉमन देखेंगे. दिस 2 इज द कॉमन. ओके. देन यहाँ पे 3 कॉमन है तो हम यहाँ पे ये वाला 3 लेंगे और ये 3 लेंगे. ठीक है. तो ये 3 2 2 ये कॉमन है. इसमें कॉमन क्या है 2 3 3 ये कॉमन है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 54 एंड 72. दोनों में कॉमन क्या है 2 3 3 2 3 3 ये कॉमन है. अभी HCF निकालेंगे. HCF ऑफ 54 एंड 72. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 × 6 and 6 multiply by 3 18. 2 multiply by 3 2 multiply by 3 6 and 6 multiply by 3 18. So here HCF is the 18. Here HCF is the 18. So this is example number 4. Now example number 5 and 6 both are the homework for you. Example number 5 and 6 both are the homework for you. Now example number 7 8 we will solve in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.